A 500% tariff has been imposed on India. Is it true? Maybe, maybe not. But the bigger question is that why is Mr. Donald Trump being so insane about crude oil, especially the natural reserves these days? And this question I've seen is not being yet answered in a much clearer way. Hello everyone, this is Sajal Nigam. Welcome back to the channel. Today in this video, we'll be talking about everything which is happening at the geopolitical levels. Whether it's a Venezuela war, whether it's oil prices crashing up, whether it's the Indian stock market crashing down, everything which is happening at the geopolitical level will be discussed very, very clearly in this particular video. Please stay tuned. Now, the first thing which comes to our mind about when we think about geopolitical levels nowadays is the Venezuela and US crisis. दोनों ही देश जो है वो लैटिन अमेरिका का पार्ट है. क्यों एक इमीडिएट ऐसी टेंशन पैदा हो रही है और क्यों यूएस वेनेजुला पे अटैक कर रहा है, क्यों उनके प्रेसिडेंट को यूएस आर्मी लेके जा चुकी है. There are two main reasons for it. The very first thing which US commits is that कि जो वेनेजुला के प्रेसिडेंट हैं along with his wife is indulged into some drug related cases. Now, this is one thing which they commit that this might happen. The second thing and the most important and interesting thing is that Venezuela is one of the most richest country when it comes to the oil reserves. अब इस point को please आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि at the end of this video I'll tell you the basic psychology of Trump. क्यों Trump इतना ज़्यादा crazy हो चुका है इस time पे about the oil prices and everything. उसकी बहुत ही deep economic psychology और strategy है which I'll tell at the end of this video. उसके लिए मुझे इस point की ज़रूरत पड़ेगी, so please hold on to it right now. The second point which we come to now is about the 500% tariffs. Will this actually implement? ये implement हो चुका है या फिर होने वाला है? What is the math behind it? Let's get into that. So let's start with that. Is it actually implemented? The very first thing that it is a bill which is proposed. हम पहले इसको बारे में समझते हैं कि यूएस कांग्रेस में एक बिल प्रपोज हुआ. उस बिल में ये लिखा हुआ था कि जो भी देश रशिया के एनर्जी प्रोडक्ट्स को बहुत ही हैवी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, हम उनके ऊपर स्टीप टैरिफ्स लगाएंगे अप टू 500%. अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा रशिया यूक्रेन की वॉर के बारे में जानना पड़ेगा. रशिया यूक्रेन की जो वॉर हो रही है, यूएस हमेशा से यूक्रेन को सपोर्ट करता हुआ है और यहीं पे रशिया को डिस्करेज करने के लिए यूएस डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहा है बल्कि इनडायरेक्टली वो उन देशों पे बहुत ही स्टीप टैरिफ्स लगा रहा है जो देश रशिया से क्रूड ऑयल को या फिर कह सकते हैं कि एनर्जी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर रहे थे. तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रशिया को इस वॉर सिचुएशन में डिस्करेज करने के लिए द यूएस और द ट्रम्प हैज कम अप विद दिस टैरिफ्स थिंग्स, राइट. अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि अगर ये चीज़ अभी तक प्रपोज नहीं हुई है तो इसकी वजह से स्टॉक मार्केट, स्पेशली इंडियन स्टॉक मार्केट क्यों इतना डाउन जा रहा है. हमने देखा भी रिसेंट डेज में कि हमारी मार्केट बहुत ही ज़्यादा क्रैश हुई है. तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पहली बात तो बिल प्रपोज हुआ है और दूसरी बात ये है कि द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ गिव्स अ लॉट ऑफ पावर एंड हिमसेल्फ वांट्स दैट दिस बिल गेट्स प्रपोज्ड इनटू एंड कम्स इनटू प्ले. सो कहीं ना कहीं ये एक सिग्नल देती है स्टॉक मार्केट्स को कि समथिंग इज गोना गो डाउन एंड समथिंग माइट गो uncertain and unpredictable in the future. Okay, so now let's talk about in depth that why is Indian stock market going so down and what is happening there. One thing we have got to know right now is that because of this bill proposement कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ नहीं हो सकती है, दो तीन चीज़ें और accumulatively हो रही हैं. Let's know about that. The very first thing which we come across is that the rupee value or the Indian currency is going down day by day. We have seen that our currency is being depreciating for a very long period of time. If you want to know about what is depreciation, how is our currency getting depreciated, you can check one of my videos. I've put the link below. Okay, anyways, getting on to the topic that because the rupee is getting depreciated so much, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो FIIs हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनका भी हमारी करेंसी के ऊपर से एक ट्रस्ट कम होता है, राइट. उनका भी उतना ज़्यादा एक ट्रस्ट नहीं बिल्डअप हो पाता है दैट नाउ दे शुड इन्वेस्ट मोर. तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से वो बेचना बहुत शुरू कर रहे हैं. हमने देखा कि पहले 8 दिनों में ही 8,000 करोड़ का माल जो है FIIs ने बेच दिया. तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका ट्रस्ट कम हो रहा है बिकॉज ऑफ द वीकनिंग ऑफ आवर करेंसी, राइट. ओके, सो इन सब चीज़ों की वजह से भी कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट इज गोइंग सो डाउन एंड स्पेशली द इन्वेस्टर्स हेयर और द पीपल हु आर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, दे ऑल्सो हैव दिस पैनिक थिंग दैट क्योंकि जियोपॉलिटिकल लेवल पे वी आर नॉट परफॉर्मिंग गुड, कहीं ना कहीं करेंसी डेप्रिसिएशन का एक टेंशन है. दूसरी टेंशन हमें टैरिफ्स की भी बहुत ज़्यादा हो रही है. अभी तक 50% थे, अब 10 टाइम्स 500% तक के जो है टैरिफ्स की हमें संभावना दिख रही है. तो ये सारी चीज़ें जो है एक्यूमुलेटिवली कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट के क्रैशिंग का बहुत बड़ा रीज़न बनती है. इसमें बस यही सारा एक जो सजेशन होगा वो यही होगा कि प्लीज़ डोंट पैनिक सेल. इस समय पे पैनिक मत कीजिए. ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म के लिए ही होती है. हमें ऐसा लगता है कि बहुत ह्यूज लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स होंगे
होंगे इन चीज़ों के, बट कहीं ना कहीं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दीज थिंग्स गेट टू अ स्टेबल पॉइंट, दीज थिंग्स गेट टू अ सीरीन लेवल, जहाँ पे सारी चीज़ें थोड़ा सा स्टेबलाइज होने लगती हैं. Okay, so now this was all about that why Indian stock market is getting crashed. We have discussed about three main reasons. The very first thing is the currency depreciation or rupee depreciation. The second thing is that because of the rupee depreciation, FIIs are losing interest and they're selling a lot much, and not buying anything obviously. The third thing is that because of the geopolitical amendments or the bills getting passed, or because of the US tariffs, these things are also coming into play, that accumulatively they are making investors sell a lot, and ultimately the stock market crashing. So now, my dear friends, let's come to the very last part of the video, and especially the most important and crucial part of this video, which I've been waiting for long, and that is कि क्यों ट्रम्प ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्यों वो इस समय ऑयल के पीछे बहुत ही इंसेन हो चुके हैं. लेट्स नो अबाउट दैट, लेट्स टॉक अबाउट इट. हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ट्रम्प के यहाँ पे दो मेन मोटिव हैं. पहला मोटिव उसका ये है कि रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चलती हुई आ रही है, ट्रम्प हमेशा से यूक्रेन को सपोर्ट करता आया है, और रशिया जो है वो एक ऑयल रिच कंट्री है. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडिया, चाइना एंड ब्राज़ील, ये तीन कहीं ना कहीं ऐसे देश हैं जो कि बहुत ही हैवी इंपोर्टर्स है क्रूड ऑयल के, और ये रशिया से अपना मेजॉरिटी ऑयल को इंपोर्ट करते हैं. अब यहाँ पे ट्रम्प ये 500% का टैरिफ भी उनने इसीलिए लगाने का उनका डिसीजन है क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ पे वो डिस्करेजमेंट हो, राइट. अब यहाँ पे दूसरा उनका जो रीज़न आता है वो ये है, वो बहुत ही एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रेटेजिकली इकोनॉमिक रीज़न है. अगर आप खुद ही सोचिए, अगर ये तीन देश जो कि हैवी इंपोर्टर्स है क्रूड ऑयल के, अगर ये ट्रम्प के टैरिफ्स के डर से अपना क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करना बंद कर देते हैं रशिया से, तो ये कहाँ से इंपोर्ट करेंगे. अब यहाँ पे आता है वो पॉइंट जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. वेनेजुला और यूएस क्राइसिस में सबसे बड़ा जो दूसरा रीज़न था वो ये था कि वेनेजुला एक बहुत ही ऑयल रिच कंट्री है. यूएस क्या कर रहा है इस टाइम पे, वो सारे ऑयल रिच कंट्रीज को सीज ओवर करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो मेक्सिको हो, चाहे वो क्यूबा हो, ग्रीनलैंड हो, या फिर वेनेजुला हो. ये सारे ही कंट्रीज बहुत ज़्यादा ऑयल रिच कंट्रीज हैं. व्हाई इज यूएस डूइंग दैट? क्योंकि उसको पता है कि इतने बड़े टैरिफ के डर से, इंडिया में तो 10 गुना टैरिफ के डर से, मे बी द कंट्रीज माइट स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, राइट. लेकिन ऐसा तो है नहीं, अब उनकी ज़रूरत कम हो गई है, ज़रूरत अभी भी उतनी है, बस वो उस देश से नहीं कर रहे. तो फिर वो कहाँ से करेंगे? क्योंकि अब यहाँ पे ट्रम्प इतने सारे देशों के ऊपर सीज करके अपनी पार जमा के, चाहे वो वॉर के थ्रू हो, कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू हो, स्टेटमेंट्स के थ्रू हो, किसी भी तरीके से वो इतनी पार अपनी स्टैब्लिश कर रहे हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं यूएस एक ऐसी इकोनॉमी बन जाएगी जिसके पास सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स होंगी. तो ऐसे देश जो कि ऑयल डिमांडिंग देश हैं, जो कि ऑयल इंपोर्टिंग देश हैं हैवी मात्रा में, वो कहीं ना कहीं रशिया से शिफ्ट होकर यूएस पे आ जाएंगे. So this is the major thing, that why is Mr. Donald Trump driving or getting crazy about oil these days. पहली चीज़ उनको ये दिख रही है कि वो रशिया को कैसे डिस्करेज करें इस वॉर थिंग से, और दूसरी चीज़ उनको ये दिख रही है कि कैसे वो इसका एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक बेनिफिट अपने कंट्री के लिए उठा पाएँ. तो ये एक वाई था, क्यों ये सारे डिसीजंस मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं. हम देखते हैं कि व्हेन वी रीड द न्यूज़ वी गेट टू नो दैट ओके टैरिफ्स आर बीइंग इम्पोज्ड, वी गेट टू नो दैट सम वॉर इज हैपनिंग एट द कंट्रीज, बट वी नेवर गेट टू नो दैट the person who's taking these decisions, what is the economic mindset of him taking these decisions, and that is something which is most and most important to me. So this is something how I have tried to explain you that why is he taking these decisions. Now the last part, and technically the suggestion part of our videos, is where we tell you about how people, the general public or the policy makers or the traders or businessmen, how are they getting affected, and lastly that what can they do to beaten up the situation, to get out of the situation in a very very well way. Okay, let's get into it. So the very first suggestion is for investors. Investors इस समय सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड माइंडसेट में होते हैं, बिकॉज उनको नहीं समझ आ रहा होता है कि इस इकोनॉमिक टेंशन्स में हम क्या कर सकते हैं. सबसे बड़ी बात जो आप इसमें ध्यान रख सकते हैं वो ये है कि अपने पोर्टफोलियोज़ को जितना हो सके डाइवर्सिफाई रखिए. डाइवर्सिफिकेशन हर चीज़ में, चाहे वो सेक्टर्स के फॉर्म में हो, चाहे वो कंपनीज़ के फॉर्म में हो, या वो आपके इन्वेस्टमेंट मेथड्स के फॉर्म में हो, अपनी प्लेट में सारी तरीके की मील्स को इस समय इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है. एक जगह अगर आप स्पेसिफाई हो जाएंगे, वैसे भी स्पेसिफाई नहीं होना चाहिए एक जगह पे, लेकिन इन सारे मैक्रो इकोनॉमिक टेंशन्स के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, राइट. सो आप जितना ज़्यादा अपनी पॉकेट्स को डाइवर्सिफाई करके रखेंगे, उतना ज़्यादा यू विल मिनिमाइज रिस्क एंड उतना ज़्यादा यू विल गेट आउट ऑफ द सिचुएशन.
ओके, द सेकेंड थिंग इज दैट डोंट पैनिक सेल। ये मैंने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में कि ज़्यादा पैनिक मत करिए इन सारी चीज़ों की वजह से। मार्केट है, जियो पॉलिटिकल लेवल पे बिल्स आते रहते हैं, अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, शायद ना भी हों, यू नो। सो ये सारी चीज़ें बहुत लॉन्ग टर्म नहीं होती हैं, एक छोटे मोमेंटम पीरियड के लिए ऐसा हमें लगता है कि थिंग्स आर गोइंग वेरी अप एंड डाउन। सो प्लीज़ डोंट पैनिक राइट नाउ, stay focused, stay patient, be a patient investor right now also. This is something which everyone, being your MFD, being any the person who's your investor advisor, would tell you this right now. Okay, second thing which we talk about is for the exporters. Exporters के लिए यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है कि अगर इतने बड़े टैरिफ्स हमारे ऊपर इम्पोज हो जाएंगे तो हम कैसे अपना बिजनेस करेंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप इसको एक ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है। अगर आपके मेजर एक्सपोर्ट्स यूएस से हो रहे थे तो आपके पास कहीं ना कहीं ये एक न्यू फॉर्म है टू एक्सपैंड इनटू अदर मार्केट्स ऑल्सो। खाली यूएस नहीं है हमारे लिए धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। वी ऑल्सो हैव मिडल ईस्ट, वी ऑल्सो हैव अदर एशियन countries as well. So वहाँ पे भी you can try right now. Do not only cater to US, and please diversify your business opportunities into some other parts of the world as well, right? So this is something for the businessmen or the exporters these days. And the last suggestion for the general public is that please guys make long-term goals. Do not stick to year goals or 3 or 4 year goals. Please make long-term goals. Focus on the risk management techniques. If you want certain videos on that, I can make for them as well. Please comment down in the below sections. But always focus on the long-term perspectives when we are talking about some uncertainty which is happening at this level. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। मैंने इस वीडियो में कोशिश करी है कि जितनी मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे और जियो पॉलिटिकल लेवल पे चीज़ें हो रही हैं, आई ट्राई टू डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो। चाहे वो क्राइसिस हो रही हो, चाहे वो वॉर्स हो रही हो, और सबसे बड़ी बात है कि वो वॉर्स क्यों हो रही हैं। जो पर्सन इस समय डिसीजन ले रहा है, इतने बड़े इतने स्टीप 500% टैरिफ्स और ऐसे डिसीजन ले रहा है, वो क्यों ले रहा है। देयर इज ऑलवेज एन इकोनॉमिक माइंडसेट बिहाइंड टेकिंग दीज strategic decisions, and that is something which everyone should know about it. So this is all for today's video. We'll see you very soon in upcoming videos. If there's any topic which is bothering you right now, you can comment down in the comment section, and I'll definitely make a video on that. Thank you so much for watching, and stay tuned.